مصطفیٰ بلائیں گے مجھ کو بھی مدینے میں مصطفیٰ من أهل السنة والجماعة وطهر ديننا من كل سوء وشناعة وأمرنا بتجنب أولي الزيغ والخلاعة الذين هم للدنيا مشترون وللدين باعة والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي البراعة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زینت تخت آسمان سنیت کے آفتاب و ماہتاب سامنے بیٹھے ہوئے دنیا سنیت کے لال و گوہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں ہم سب شریک ہو کر کے اپنی حاضری درج کرا رہے ہیں. مبارکباد دیتا ہوں رضا اکیڈمی اور تحفظ ناموس رسالت بورڈ کے کارکنان کو جنہوں نے برمحل قدم اٹھایا اور ہم سب کو اس میں حاضری کی سعادت کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو مقبولوں ہوں فرمائے. وہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات گرامی، آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے انا ارسلناک. آپ حضرات تلاوت فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. آج جو ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، احکام خداوندی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کتاب اللہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مزاج سمجھ لیں. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. ترجمہ واضح ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھیج رہا ہے رب تعالیٰ، اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے اور ارشاد فرما رہا کہ میں نے تمہیں بھیجا، آپ کو بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. سوال جاننا چاہتا ہوں میں، کیا نبی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں شاہد ہوں؟ کیا نبی کو یہ نہیں معلوم مبشر ہوں میں؟ کیا نبی کو یہ نہیں معلوم میں نذیر ہوں میں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہی فرما رہا ہے کہ میں نے شاہد بنایا ہے، میں نے نذیر بنایا ہے، میں نے مبشر بنایا. ذرا مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک طالب علم 10 سال تک مدرسے میں زندگی بسر کرتا ہے، عالمیت کی سند لیتا ہے، فضیلت کی سند لیتا ہے، حفظ و قرأت کی سند لیتا ہے، فتوی کی سند لیتا ہے، اور کسی مدرسے میں جب وہ پوسٹنگ اس کی ہو جاتی ہے، مدرس بن کے چلا جاتا ہے، تو مدرسے کے محتمم سے استاد کے سامنے اپنے شاگرد کو یہ فرما رہا کہ میں بھیج رہا ہوں، لیکن میں نے تمہیں عالم بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں فاضل بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں حافظ بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں قاری بنا کر بھیجا ہے.
सवाल ये पैदा होता क्या तालिब इल्म जिसने 10 साल मदरसे के मुदर्रिस की खिदमत में जिंदगी बसर की, उसे नहीं मालूम है कि मुझे आलिम हूँ, मैं फाजिल हूँ, मैं हाफिज हूँ, मैं कारी भी हूँ? क्या उसे नहीं मालूम है? अगर मालूम है तो यह तहसील हासिल क्यों? लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ होते हुए अल्लाह ताला नबी से फरमा रहा कि मैंने आपको भेजा शाहिद मुबश्शिर बना करके। बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी किस्म का शायबा भी गैरत इलाही सुनने को गवारा नहीं करती है। जब कोई बात कही जाती है किसी के बारे में तो उमूमन ऐसा होता है सद बेसद सब उस बात पर मुत्तफिक नहीं होते हैं, बल्कि उसमें चेमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, राय में इख्तलाफ हो जाता है। हो सकता है हो सकता है ना हो। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि मैं अगर ऐलान करूं उन लोगों के सामने जहां नबी जा रहे हैं कि मैंने इनको शाहिद बनाया है, मुबश्शिर बनाया है, नज़ीर बनाया है, खुश हाजिर रहने वाला बनाकर भेजा है, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, डराने वाला बनाकर भेजा है, तो मुमकिन है दुनिया के लोग कुछ चेमगोइयाँ करें, हो सकता न हो। तो मशीयत यज़दी को ये गवारा नहीं है कि हमारे नबी के बारे में ऐसा भी ख्याल आने पाए कि हो सकता है न हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है नबी से, हे नबी भेजने वाला मैं, बनाने वाला मैं आपको भेज रहा हूँ। अब दुनिया वालों के सामने मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि नबी शाहिद हैं, हो सकता है मुबश्शिर हूँ, हो सकता है नज़ीर हूँ, हो सकता है न, ये गुंजाइश नहीं रही है। तो जहाँ इस किस्म की गुंजाइश गैरत इलाही को मंजूर नहीं है, मशीयत यज़दी को मंजूर नहीं है, इतनी अजमत का ख्याल अल्लाह ताला अपने नबी के बारे में फरमा रहा है, तो दुनिया वालों तुम जरा सोचो, तुम नबी के बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हो और नबी की अजमत के बारे में कैसे कैसे नाज़ेबा इस्तेमाल कलमात इस्तेमाल करते हो। सुब का मकाम है, सोचने का मकाम है। अल्लाह ताला फरमाता नबी मैंने तुमको भेजा, आपको भेजे शाहिद बना करके, मुबश्शिर बना करके, नज़ीर बना करके। मकसद क्या है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर। क्यों? जो ताज़ीरू हो वो तवक्कुर हो, उनकी ताज़ीम करो और उनकी ताक़ीर करो, इसलिए बनाकर भेजा। ये जानना चाहिए कि मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर आपने इसका ख्याल नहीं किया तो आपका सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। और कायनात के अंदर अल्लाह ताला के बाद अगर इज्जत व तौक़ीर व तकरीम का कोई ज्यादा मुस्तहक़ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तहक़ हैं। और किसी को ऐसा महबूब बनाकर भेजा नहीं। जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया है और आपको अपना हबीब, अपना महबूब बनाया है। और ऐसी बात बल्कि फरमाते माँ खलक तो खलकन अकरम अलैया, यानी आपसे मुअज़्ज़ज़ मैंने किसी को पैदा ही नहीं किया है और दुनिया वालों को इसलिए मैंने पैदा किया है ताकि आपकी अजमत के बारे में उनको मैं बाखबर कर सकूं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एहतराम आदमी क्यों करता है? आज हमारे बहुत बड़े उलमाए कराम हमारे सामने मौजूद हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं उनका एहतराम नहीं करते हैं, जिनको हम जानते हैं उनकी दस्तबोसी, उनके कदम बोसी करते हैं। तो नबी की अजमत का जानना भी जरूरी है। और अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में जा बजा नबी की अजमत का ऐलान फरमाया, बयान फरमाया है। थोड़ी सी अल्लाह के नबी के बारे में चंद सहाबे कराम बैठे हुए थे, थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाए सहाबे कराम की, गैरत इलाही को जोश आ गया, आयत करीमा नाजिल हो गई, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू बिलकौल कजहर बाज़कुम लिबाज़ अन तहबत अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी के सामने अपनी आवाज न बुलंद करो, नबी की अजमत और एहतराम का हाल उनके सामने आवाज भी बुलंद न करो। कितनी बुलंद हुई होगी? नबी ने नहीं कहा कि आवाज बुलंद न करो, पस्त बोलो, ये नबी ने नहीं कहा, मगर मशीयत यज़दी जोश में आ गई, गैरत खुदामंदी जोश में आ गई, बारगाह खुदामंदी से हुक्म इलाही नाजिल हो गया।
नाजिल होने के बाद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी बातें करने लगे नबी से जैसे कान में चुपके से कोई आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर कोई राज की बात बताता हो। उमर फारूक को इतना पछतावा से गुफ्तगू करने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ता था, उमर फारूक क्या फरमा रहे हो, दोबारा बोलो। साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला रो रहे थे, थोड़ा बुलंद आवाज से बोलते थे, रो रहे थे। एक सहाबी से मुलाकात हुई, शिकायत पहुंचा दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो उनका आंसू ज़ारो कतार रो रहे हैं। उनको बुलाया गया, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए। साबित बिन कैस फरमाने लगे, चूंकि बुलंद आवाज मैं हूँ, चूंकि सुनते कम थे तो बोलते बुलंद आवाज से थे, लिहाजा यह आयत करीमा मेरे बारे में नाजिल हुई है, मेरे तो आमाल अकारत हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा नहीं, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम शहीद किए जाओ और अल्लाह ताला के जन्नत के अंदर इज्जत और एहतराम के साथ हाजिर हो। उन्होंने फरमाया मैं इस पर राजी हूँ और वादा करता हूँ नबी आपकी बारगाह में कभी बुलंद आवाज से नहीं बोलूंगा। तो ये नबी का एहतराम था। और ये भी फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो नबी को जब पुकारना हो तो ऐसे मत पुकारा करो, ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बाज़कुम बाज़ा, जैसे अपने को आपस में एक दूसरे को पुकारते हो ऐसे मत पुकारा करो, ये तरीका नहीं होना चाहिए। बल्कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते इसकी तशरीह व तहज़ीम में कदुआए अहदकुम अखन बिस्मी ही, यानी जैसे अपने भाई को नाम लेकर पुकारते हो ऐसा नहीं पुकारो, वलाकिन वक़्करू हो वग़ज़्ज़मू हो, बल्कि उनकी ताज़ीम करो, तौक़ीर करो। वक़ूलू लहू या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, भाइयों की तरह मत पुकारो, नाम लेकर मत पुकारो, बल्कि जब पुकारना हो तो कहो या रसूल अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो। और कुरान करीम ने यही मिजाज दिया जगह बोल करके कि तमाम अंबिया कराम का तो नाम लिया है, या आदमो कहा है, या ईसा कहा है, या मूसा कहा है, या यहया खुज़िल किताबो बिक़ुव्वा कहा है, लेकिन नाम लेकर कहीं नहीं पुकारा है। दोस्तों ये कुरान पाक, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी पुकारा गया है, क्या पुकारा गया है, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर। गोया कि या दमस बाफिदर अंबिया खिताब, या अय्युहन नबियो खिताबे मोहम्मद। तमाम अंबिया कराम को तो नाम के साथ पुकारा गया है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खिसात कमालिया को मद्देनजर रखते हुए खिताब किया गया है। उलमाए कराम की तादाद काफ़ी है, उनके मवाइज़ हसना से आपको मुस्तफ़िद होना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान की अजमत को वाज़ेह करते हुए नबी करीम की अजमत को चाँद और सूरज तक लेकर, चाँद और सूरज हो या शम्स और कमर हो या सजर व हजर हो या लालो गहर हो, हर एक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को वाज़ेह कर दिया है। क्योंकि कुव्वते मुदरका इंसानों के साथ दे करके ये बता दिया है, तुम अपने अक्ल का इस्तेमाल करके नबी की ताज़ीम करो और तमाम सजर व हजर बरगो समर शम्स व कमर तमाम के तमाम उनके दिलों के अंदर हुब्बे रसूल पेवस्त कर दी गई है। यही वजह है जब रसूल चलते थे तो दरख्त कहता था सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पहाड़ कहता था सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आपके इशारों पर उंगली चांद टुकड़े हो जाते थे, सूरज पलट आता था। ये सब बाई चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को वाज़ेह करती है, कुरान के अंदर तफसील से मिलती है, लेकिन नबी की अजमत का एहतराम अपनी जगह है। लिहाजा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमने नबी की मोहब्बत को अपने दिलों में बसा करके दुनिया का कोई काम करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी सुरखरोई हासिल होगी और क़यामत के अंदर भी सुरखरोई हासिल होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ज़वाल बंद है मोमिन का बेज़री से नहीं, ज़वाल बंद है मोमिन का, ये सबब क्या है सब तुम समझते हो, ज़वाल बंद है मोमिन का बेज़री से नहीं। आज मुसलमान जो जगह बजा तंगदस्ती और परेशानी का शिकार है, उसकी वाहिद ये नहीं कि हम गरीब हैं मुफलिस हैं, उसकी वजह है कि हमारे दिलों से अज़मत रसूल को खुरच के फेंकने की कोशिश की जा रही है और बाद लोग उसके अंदर मुलव्विस हो जाते हैं तो तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। ईमान महफूज रखिए और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह।